फिर संकट जो न करत ना आयो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जो न करत ना आयो। परम सत्कार्यो वाहिए दो जहान साझी वालता के प्रतीक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर के चरणों में प्रार्थना साथी नवाजी साध संगत हो। आओ कोई कहने तो पहला गुरफतेह की सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विआह पुरब हर साल की तरह बड़ी श्रद्धा ते भावना के नाल मना रहे हो। आओ एक बार सारी संगत उस गुरु का रस गुणगान करिए। जरूर सारी संगत पढ़ने का यत्न करो। मगर मगर बोलो नेत्रों को बंद करके थोड़ा जहा समा गुरु चरणों का ध्यान करके जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जो न करत ना आयो, फिर संकट जो न करत ना आयो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज, धन धन माता गंगा जी, जिन्होंने समर्पित होकर के अज गुरु की हजूरी में जो दीवान सजया है, दास तो पहला कौम के ढाडी जत्थे कमीशरी जत्थियां ने हाजिर करी है। और चलते जी घड़ी अनुसार जी विचार आप गल कर रहे थे कि धन गुरु अमरदास तीसरे पातशाह जी ने जब अमृतमयी दृष्टि धन गुरु रामदास महाराज पर की है, ऐसी बख्शिश हुई इन्हों के गृह विखे गोइंदवाल साहिब की धरती से तीन पुत्र प्रगट बाबा प्रिथी चंद, बाबा महादेव और श्री गुरु अर्जन देव महाराज। इतिहास दसदा है 11 साल का समा इस धरती पर बतीत होता है गुरु अर्जन देव महाराज शरीर करके। धन गुरु अमरदास जी ने जो हुक्म लाया एक नगर वसाने वास्ते, वो केड़ा नगर से जिन्होंने अज श्री अमृतसर साहिब आख्या जाता है। अमृतसर गोइंदवाल साहिब तो बाद सिक्खी का जोड़ा केंद्र से वो अमृतसर बनया। वैसे इतिहास दसदा कि जिथे भी गुरु साहब होते थे ना, तो संगत उन्होंने स्थानों पर आपे पहुँच जाती। जिथे भी गुरु विराजमान है, जिथे जाएगा है मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। इस धरती को मुड़ लैके गुरु पातशाह जी ने वसावा किया।
ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਸਾਏ। ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਏ ਤੇ ਜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਦੋ ਭਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਬਈ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬੇ ਸਿਹਾਰੀ ਮਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਮਤਾ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਥਾਕੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਗ, ਦੋ ਰਾਗ, ਤਿੰਨ ਰਾਗ ਨੇ, 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਬੈਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ,
रतन लाल जग का कछु न मोल, भरे भंडार अखूट अतोल, खावे है खर्च है कहते खाओ जिन्ना मर्जी, इस खजाने को जिन्ना मर्जी खर्ची जाओ कभी मुकदा ही नहीं। खावे है खर्च है लाल में पहाई, तोड़ न आवे बंद हो जाई, कहते कभी तोड़ नहीं आती। पर ये कौन खाते ने, कौन इस खजाने को वरतते ने? कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एक खजाने नया बनाए। जिन्हों के मथे के भाग वाहिगुरू लिख दिता है। तो कई तो संगत में जान के भी जा रहे हो, सच करके जा रहे हो, केवल चाह पकौड़े तक सीमित रह जाते हो, संगत में बह के सुन नहीं सकते। गुरु का कोई शब्द पढ़ना हो तो कई बार वो भी सानू औखा लगता है कि ना ही पढ़ना पवे। तो मैं बेनती कर रहा सी हुण पृथ्वी चंद गुरु रामदास महाराज जी का वचन नहीं मनता। आखे बापू जी मैं लाहौर के विआह में चला गया तो गोलक कौन सामभेगा? मसंदा के नाल मेरी गंढ है, जिहड़ा धन बाहरों लैके आउंदे ने वो सारा लेखा जोखा तो मैं ही करदा। ये पदार्थवादी लोगों की अगवाई करता, केवल पदार्थों से माया तक जुड़िया हुआ है। केवल पदार्थों से माया तक ही नहीं सी जुड़िया, गोलक तो अगे इसकी दृष्टि तखत में भी चले गई। गोलक तो अगे इसकी दृष्टि तखत में भी चले गई। मैं बड़ा पुत्र हाँ, एक दिन तखत से भी बैठने का अधिकार मेरा होगा। पर जिन्हों का विआह प्रभु बनावे उन्होंने जीवन कैसा है? जिन्हों के अंदर इतनी निम्रता है, गरीबी है, प्रेमा भगती है। बाबे पृथ्वी चंद ने मना कर दिता, बाबे महादेव को आख्या उन्होंने भी मना कर दिता। सतगुरु आप ना किसी ने जाना ना आना, गल ही मुका देना। तो सच करके जा रहे हो, जो धन गुरु अर्जन साहब ने अपने सब तो छोटे पुत्र को मेरे साहब ने एक वचन किया कि तुसी विआह दे विच शामिल हो। इतिहास दसदा कि वचन मन के तुम पे, कोई किंतु परंतु नहीं किया। वचन मन के तुम पे, पर एक तरफ जरूर सी मन दे विच, वो किहड़ी तरफ सी कि सतगुरु तेरे दर्शनां तो बिना मैं कितना रहांगा। एक घड़ी ना मिलते कलजुग हो। अंदर तरफ है मेरा मन रोते गुरु दर्शन ताई, फिर पकर चादर की न्याई, त्रिखा ना उतरे शांत ना। अंदर एक तरफ है, अंदरली बड़ी भावना है सतगुरु मैं तेरे दीदार कितना करांगा, दर्शन देख जीवन रोते, क्योंकि तेरे दर्शनों के विच ही मेरा जीवन है। पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, एक घड़ी न मिलते कलजुग होता, हुण कद मिले तुरे तुद भगवंता, मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे। कैसी अवस्था होगी धन गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की कि तेरे दीदार, तेरे दरबार में दीदार करने तो बिना मैनू चैन नहीं मिलती। ऐसी भी भावना है कि सच है प्यारिओ, जे ऐसी भावना लैके ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਵੀ ਆ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਜਨ ਬਾਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਪਾਪ, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यो झगड़त पाप।
कहते भाई ये पाप है जेड़े माता पिता के नाल झगड़ा करते हैं, ये पाप है। ते जेड़ा पुत्र अपने पिता के नाल झगड़ा करता है वो पिता का वारस कितना बन सकता है? मैनूं माफ करियो, उहदे दुनियावी जायदाद के विचों भी कई बार पिता उहनूं बेदखल कर दिंदा है। पर धन गुरु रामदास पातशाह जी ने केवल ये वचन आख्या, कहन लगे जिन्हां ने जन्म दिता होवे उन्हां दे नाल झगड़ा नहीं करीदा ते झगड़ा करना पाप है। जिहड़े अज भी बच्चे माता पिता दे नाल झगड़ा करते हैं, माता पिता की साथ नहीं लेंदे, माफ करियो अज भी कई बुजुर्गों को फिर आश्रमां दे विच रोना पै रहा है। एक दोने की धरती से फिर आश्रम तैयार करवाया है। श्री गुरु हरराय साहब जी का स्थान है गुरुद्वारा सैदराना साहब। उत्थे साडे कोल बहुत सारे बुजुर्ग उस धरती से आते जिन्होंने कई बार घर दे विच सामभिया नहीं जाता। जे अज विआह मना रहे हैं तो सानू सतनाम दी सिੱਖਿਆ दे पल्ले बन्ननी पैनी है कि अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का सन्मान ते सत्कार करिए। बुजुर्गों का झगड़ा किया, अखीर मेरे साहब ने गुरता करनी जो बख्शिश की, जिदन दुरियाई की पग देनी सी, माफ करियो उधर भी प्रति चंद झगड़ा करता है, उधर भी झगड़ा करता है। तो इतिहास के बोल ने कि गुरियाई की जी पग है, मरने की पग प्रथी है बधी, गुरियाई की पग अर्ज ने लधी। कहते जी गुरता गद्दी की दस्तार है वो धन गुरु अर्जन साहब जी को बख्शिश की गई, गुरता गद्दी। पर जी प्रथी चंद के झगड़े वाली गल सी, वो जबरदस्ती पग के हक जमाना चाहता भी मेरा पग के हक है। बड़ा कुछ होया, पर धन गुरु अर्जन साहब ने कभी कौड़ा बचन नहीं आख्या जी। हमेशा उस मालिक की भै भावनी के विच रह के ते इतिहास दसदा है एक दिन प्रथी चंद का जिहड़ा लड़का है उसका नाम मेहरबान, इसकी घरवाली का नाम सी करमो। अखीर इन्होंने ये गल मन के पाल ली भी गुरु अर्जन साहब महाराज धन माता गंगा जी जिन्हों के ग्रह विखे कोई बच्चा नहीं, एक दिन जे अज सानू गद्दी नहीं मिली, एक दिन साडे पुत्र मेहरबान को गद्दी मिल जानी। देखो बंदा कितनी वड्डी आस ला के बैठा है, ये नहीं समझता भी गुरु नानक के घर में ये शरीरों को नहीं देखा जाता, ये बड़े तो छोटे को नहीं देखा जाता। इत्थे ते किरपा हो 5.25 साल का भी गुरु बन गया श्री गुरु हरकृष्ण साहब। श्री हरकृष्ण त्याई है जिस डिठा है सब दुख जाए। इत्थे ते 9 साल की उम्र में मेरा कलगियां वाला गुरु गोबिंद सिंह सरबंसदानी गुरु बन गया। इत्थे ते 11 साल की उम्र में 6वें पातशाह पीरी पीरी के मालिक गुरता करनी से विराजमान हो गए। इत्थे ते 14 साल की उम्र में श्री गुरु हरराय साहब गुरता करनी से विराजमान हुए। ये गुरु नानक के घर में उम्र नहीं देखिया जांदियां, गुरु नानक के घर के सिफारिशां नहीं देखिया जांदियां। जिहदी सिफारिश वड्डी है उन्होंने वड्डा अहुदा दिता जाए। तो जे इदा देखा जा रहा है यदा मतलब असी सिक्खी सिद्धांत तो टुटते जा रहे हैं, सानू सिक्खी सिद्धांत की समझ नहीं। इत्थे वोटां नहीं देखिया जांदियां, इत्थे सिफारिशां नहीं देखिया जांदियां, इत्थे माया ते पैसा नहीं देखा जाता। तो जिहड़ा बंदा गुरु नानक के घर में ये चीज़ां लैके आवेगा ना, नोट करियो जरा, जिहड़ा बंदा कब्जाबाजी सोच लैके आवेगा गुरु नानक के घर में, चाहे मेरे वर्गा कोई प्रबंधक होवे, चाहे संगती रूप में कोई होवे, सच करके जा रहे हो तो गुरु अर्जन साहब दी खुशियां नहीं ले सकता। जिहड़ा कब्जाबाजी सोच लैके मेरा कब्जा ये तो हो रहा अज इदा भी लोग कर रहे हैं। असी क्यों ये गल पढ़ते हैं बार बार, तुम पढ़न तो संकोच कर रहे हो, आप पढ़ते नहीं। इसका कोई कारण है जपियो जी अर्जन देव गुरु, इतने क्यों नहीं लिखा भी जपियो प्रथी चंद, जपियो महादेव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उन्होंने असं नहीं जपना। क्यों? क्योंकि जे उन्होंने जपांगे उन्होंने गुण अवगुण भी साढ़े में आउणगे, उन्होंने सोच के गुरकता तुसीं मसी, उन्होंने सोच के गद्दी तक